یہ تھی نصر محمد ملک کی روایتی اب میں شربت اپنا درد و وزیر بیان ہے. یہ بچے کی شکست نہیں بیا کرتی بیٹیاں جاتی ادارتا جاتی باقی ادارتا پیش کرتی دلت کرتی بچیاں سے بیا کرتی ادارتا جاتی بچہ پر ماس جدوے تقسیم لوگا Questa barrica si adatta a viaggio, ma salta buona dopo. مہربانی اب میں مولا بخش اور غیاث الدین کی روایتی کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے رابطہ پیروں کے حوالے سے تفصیلات بیان کریں. السلام علیکم. یہاں سے آئے میرے بہت ساتھیوں اور اپنے بھائیوں کا کیا رکھتے انہوں نے ہمارے ساتھ دیا اور ہمیں بولنے کا موقع دیا. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج موقع کے حوالے سے ہمیں بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے. میں اپنے کرنل ضعیف بلوچ جو 15 اپریل 2015 کو ہم چوکی سے لاپتہ کیا تھا، جس کا ابھی تک نہ کوئی ادا ہے نہ پتہ. یہ تنظیم سے اس کے والد آج لگا ضعیف کا نام لیتے ہوئے دریائے پانی سے گزرتے ہیں اور ان کی بوڑھی والدہ جو اپنا اور شوہر کو دیکھیے ہر وقت بس ضعیف کا نام لکھ کر روز یہ کوئی ضعیف کے پاس جانا ہے. جیسے کہ آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ پنجو کا وہ ریڈی کرنا ہے جو پنجو تربت سے شال کی طرف آ رہی ہے. اس کی بوڑھی والدہ اسی درجے میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کا تصویر اٹھائے ہوئے رو رہی ہے. اگر میں غیاث الدین کے بارے میں بات کروں تو غیاث الدین بھی ایک نہایت بے قصور انسان جو اب چونکہ اپنے گھر جا رہے تھے، راستے میں اس کے پیرنٹس کے ساتھ کو گاڑی سے اتارا اور سیکورٹی فورسز اپنے ساتھ لے کے گئے. ابھی تک اس کا نہ کوئی عطا نہ کوئی کتاب، حالانکہ اس کے جو خواب وغیرہ ہیں وہ سب اپنے مرضی ہیں. اس کے لیے آواز بھی ہم نے اٹھایا ہے. کراچی پریس کلب ہو یا کوئٹہ پریس کلب، یہاں تک کہ اسلام آباد ہو، کوئی بھی جگہ ہو، چوک چوراہے ہم نے نہیں چھوڑا. اس کے بعد آتی ہے میرے کزن نور محمد کی، جو شاید آپ لوگوں کو پتہ ہے نور محمد عمان میں آرمی یونیورسٹی تھے. نور محمد انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے. غربت کی وجہ سے وہ وہاں سے عمان کے فوج میں بھرتی ہو گئی. ایک دن ایک بدبخت دن آیا، وہ اپنے والدین سے ملنے عمان سے پاکستان آ گیا. جب وہ اپنے بوڑھے والدین سے مل کر واپسی سے جا رہا تو کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکورٹی فورسز نے انہیں اغوا کیا. 12 سال کے بعد ابھی تک نور محمد کا کوئی آنے والا نہیں آیا. ہم لوگوں نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ لوگوں کی عدالتیں کس لیے بنیں؟ اگر ہمارے
जो लापता अपराध है उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको अपने इन्हीं अदालतों में लाएं, हमारे सामने उनको सजा दें। अगर उनका जुर्म साबित हुआ तो उनको फांसी पे चढ़ा दें, हमको कबूल है। लेकिन यूँ उनको उठा कर ले जाना और किसी ऐसी जगह लेके जाना, हमको पता भी नहीं कि वो किस हाल में है। इस तरह उनको टार्चर सेलों में बंद करना, अर्जी देना, सिर्फ एक पर्स को नहीं बल्कि पूरी फैमिली को अर्जी दे रहे हो। जब तुर्बत का एहसानिया पेश आया कि सीजीडी के हाथों लापता बालाज, लापता शेख, लापता अब्दुल शकूर और लापता अब्दुल वदूद को दहशतगर्द करार देकर शहीद किया गया तो सब के घरों में कयामत टूट पड़ी, क्योंकि सब इसी आसरे में थे कि शायद हमारे घर वाले लौट आएंगे। लेकिन जब भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो हम लोग परेशान होते हैं कि इसके बाद खुदा न खास्ता अल्लाह न करे हमारे प्यारे भी इसी तरह दहशत के नाम पे मारा न जाए। इसीलिए हम आवाज उठाते हैं कि हमारे प्यारों को अपने अदालतों में ले आए, अपने अदालतों में उनको सजा दें। लेकिन आजकल हमने अदालतों पर यकीन करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि जब बालाज की बहन रो रही थी तो उसने यही कहा था कि मेरे भाई को अदालत में पेश किया, फिर हमको फोन किया, मैं खुद अपने भाई से मिलने के लिए गई, मैंने खुद अपने भाई से मिल भी किया, मैंने उसको बगल भी किया। उसके बाद भी घर आई, मैंने अभी को बोला अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बालाज मंजरियाम पर आया है और चंद रोज बाद वो इंशाल्लाह घर पहुंच जाएगा। मैंने 5,000 का नोट अपने दूसरे भाई के हाथ संभाल के मैंने बोला इसको जाके खुला करके लेके आओ, लेकिन कड़क नोट लेके आओ ताकि जब बालाज घर में आए तो फिर मैं उसके ऊपर ये पैसे निशावर करूँ कि मेरा भाई जो है सही सलामत घर पहुंच जाए। अभी हम आपकी अदालतों से भी हम मायूस हो चुके हैं, आप हमें अदालतों में लेके आते हो, फिर तीसरे दिन गोलियों से चलनी लाश हमको देते हो। इस हवाले से अभी हम क्या बोले, हम इसी इंतजार में बैठे रहे कि आप हमें रईस दे दोगे या टीम के इंतजार में बैठी रहूं या फिर मैं अपने कदम नूर मोहम्मद के भी इंतजार करूं। अभी जितने लवाइकी मेरे साथ हैं, इस अम्मा को पता नहीं कितने अरसे से ही चौक चौराहों पे मैंने देखा, 1-2 दफा इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक दिन भी ये जो दूसरी अम्मा ये भी हमारे साथ 50 दिन उन्होंने रेड जोन में जब हमने दर्जा दिए हमारे साथ थे। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से मैं इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों से यही कहना चाहती हूँ, खुदारा इन माओं पर तरस खाओ, इनके प्यारों को वापस इनको लौटा दो। इसका कहना है कि मेरा जो बेटा है मेरा वारिस सहारा है, और जो तुर्बत के वाक़ये में एक बूढ़ा बाप जो आप लोगों ने देखा होगा जो बिलक बिलक के रोता है, कहता है कि मुझे किसी ने धोखा दिया था कि आज और तुर्बत में अपने बेटे को पढ़ाओ, पढ़ लिखी हो बड़ा असर पड़ेगा, यहाँ क्या तुम इसको डेढ़ बकरियां चलाने को बोला है। जो बेचारा यही रो के कहता है काश मैं उनको लेकर तुर्बत नहीं आता तो आज मेरे एक वाइड एक सहारा मेरे घर से ना चला जाता। बड़ी दुख की बात है, अपने ही सरजमीन हमारे ही सरजमीन को हमारे लिए इतना तक मना दिया गया है कि हम अपने ही सरजमीन में अपने बच्चों को पढ़ाने में भी डरते हैं। हमारी कसूर क्या है? हमारा कसूर यही है कि हम बलोच हैं, हम कशीदाकारी करके अपने प्यारों को पढ़ाते हैं, हम कशीदाकारी करके जमींदारी करके काश्तकारी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हमारे बच्चों में शऊर आ जाते हैं, जब वो इस लायक हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं कि हम अभी अपने गुणों के सहारे बढ़ जाए तो आप आके उठा के ले भी जाते हैं। खुदारा में यूएनए से इंसानी आलम के अलमबरदारों से अपील करना चाहती हूँ, प्लीज खुदारा अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है तो अपनी अदालतों में इनको पेश करो, अपने सामने हमारे सामने इनको जो सजाए आप दे सकते हो दे दो, हमें कबूल है। लेकिन टार्चर सेलों में बंद करके 13 साल 15 साल बंद करना, उनको भी अजर के साथ तो उनको भी अजर दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी है वो
बात आप लोगों के सामने लाएंगे। हमारे बच्चों में सबूत होएगा, बिल्कुल से ज़्यादा इम्कान नहीं है। अभी 15 जून और 16 जून के शब को वही बलोच को उठाया गया, वही कुमारानी को, जो कि रात को सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करता था और दिन को एक मेडिकल स्टोर में काम करता था। जब हम लोग गए उसके सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ उठाए और उसके रिकॉर्ड को निकाला, 2 साल तक उसने कोई ड्यूटी नहीं किया हुआ है। एक शख्स भाई दहशतगर्द है, वो 2 साल तक छुट्टी नहीं करता है। रात को 10-12 हज़ार रुपये के लिए चौकीदारी और दिन को 5,000 रुपये के लिए मेडिकल स्टोर में काम। अच्छा, उसके वालिद साहब पर क्या गुजर रहा है? पूरा ज़ईफ़ आदमी है, ज़रीफ़, उनका वालिदा का क्या हाल है, बहनों का क्या हाल है, चल कर आप हमारे साथ देखो। हम तो ये आज हमारे इतने भी जो लोग यहाँ पर बैठे हुए खुशी से नहीं बैठे हुए, इसी तरह लगता है तो उस जगह को पता है ना, आलमी इंसानी हुकूक का आज दिन है। मैं तमाम भारत वालों से, तमाम जितने भी लोग हैं, उलमा इकराम है, सबसे अपील करता हूँ कि आप लोग खुदारा जो लोग पार्लियामेंट में ये सब मिलकर ये आवाज़ उठाएं, इंसानी हमदर्दी के तौर पर। भाई अल्लाह के वास्ते, ये ज़रूरी नहीं है कोई BNP से गया है या कोई नेशनल पार्टी से गया है या कोई पख्तूनख्वा से गया है या पीटीआई से। भाई अल्लाह के वास्ते इंसानी हमदर्दी भी एक चीज़ है। हमारा इस्लाम हमें इस बात का सबक देता है, अल्लाह मजलूम के साथ है। भाई किसी ने कोई जुर्म किया है, आप उसको अदालतों में लाओ, उनको पेश करो। अभी ये मरी का वालिदा को लोग देखो और वो दूसरों का देखो, हम लोग का क्या हालत है। चलो घरों में तो देखो एक तरफ मातम पेशा हुआ है बलोचिस्तान में। आज हम लोगों का, बलोचों का जो गम है वो चिमटी का गम बन गया है। हर दिन गम है भाई, गम खलास नहीं है। जैसे हम लोग का बेरावी की एक मिसाल है कि मोरिंग का गम, हमेशा ये जो चिमटी है पाँव के लिए नीचे आता है, उनका गम खत्म नहीं होता। आज हम लोग का यही गम बन गया, कोई गम बार भी हम लोगों का नहीं। तो हम लोग किसके पास जावे? अदालतें आप करें, किसी भी जुर्म की अदालत में पेश करो, उनके ऊपर सबूत करो, उनको सजा दे। ऐसे आप रात के अंदरों में आकर बच्चों को उठा कर ले जाओ और कोई सबूत भी नहीं है। और जिधर से वही उठाया गया वहाँ से वो DVR के कनेक्शन भी खोले गए हैं, ताला भी नहीं टूटा हुआ है, उसकी चवट भी पड़े हुए हैं, तदरी भी पड़ा हुआ है, उसका खाने में टिफिन में सामान लाया वो भी पड़ा हुआ है। अगर वो भाई दहशतगर्द था तो सिक्योरिटी पर मामूल था, उसके साथ इस्लाह था तो वो मुजामत करता था। तो उसने कुछ भी नहीं किया, अपने उठा कर ले गया। अगर उसने कोई कसूर किया है तो अल्लाह कर अदालत में पेश करो। उसने नहीं, क्योंकि जितने भी मिसिंग पर्सन हैं, जिसने कोई गुनाह किया है, आपकी अदालतें है, कानून है, उसके मुताबिक आप लाओ, उनको पेश करो। अभी तुम लोग को खौफ हो गया, आज आप अदालत में पेश करते हो, कल उसको काउंटर में करते हो। मगर एक बात याद रखो भाई, आपने जो काउंटर टेररिज्म का जो सिस्टम शुरू किया था वो अभी आपको काउंटर कर रहे हैं। आपने इनको बढ़ावा दे दिया, आपने उनको उठाया कि लोग खत्म हो जाएंगे, तो उनका अंदर कितना पैदा हो गया आपका मजबूत के तौर पर। अभी देखो ना, नाल में तो 100% आपका डेथ स्क्वाड है, खुददार में डेथ स्क्वाड है, रास्ते में हजारों लोगों के इस्तेमाल के लिए खड़े, जगह जगह में खड़े। मेरा भाई जुल्म से जुल्म खत्म नहीं होता है, जुल्म इंसाफ से खत्म होता है। अगर किसी ने कोई गुनाह किया है या अदालत में लाओं को पेश करो, अगर आपका कानून नहीं है, कानून में अपना तरमीम कर, ये कोई तरतीब नहीं है। बहरहाल हम लोगों का आपसे अपील है कि हुकूमत के वक्त से अपील है कि भाई अगर किसी ने कोई गुनाह किया है उसको अदालत में पेश किया जाए, उनके पूरे ख़ानदान को भाई अजियत से अल्लाह उदारा निकाला जाए। अभी वही का आपको वालिद साहब का हालत देख, उसका वालिदैन का, घर वालों का सब भाई टेंशन का शिकार है। जिधर कहा जाता है कि भाई फेक इनकाउंटर में किसी को मारा गया, हम लोग का रूह निकलता है। आप एक दफ़ा चलो उधर लाशों का, एक दफ़ा कफन को उठा कर देखो कि आप पर क्या गुजरता है, कि कौन किस तरह मारा गया, आपका भाई है, वालिद है, बाप है, कौन। वस्सलाम, मेहरबानी। मेहरबानी। हमारे दरमियान
ذاکر مزید بروش کی والدہ بھی موجود ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے پاکستان پر سے اظہار خیال کریں. ذاکر جان نبی بول انہیں کی بات کو لوگا پرواز کو درم درم مسنا ہوگا بس ذاکر ہم پائی ایک نبی ہے پاکستان کا اپنے تکلیف کے کہاں اپنا خود نہ کرتے یہ تیرا سلا دے ہمارے پیٹ تعلیم ذاکر جان تعلیم نہ رندہ کرتے ذاکر جان سیاسی توسط کی ذاکر جان دہشت گرد کا نظر ہوگا ذاکر جان اسٹوڈنٹ تصور یہ سنا واسطے میں نظر یہ تو تھی ارے مجھے نہ رسول کری اتے ذاکر جان اللہ مطلب ذاکر جان پانچ سالہ میں اتے ان سے بے سہارا کرے ہمارا ویلے شنا دیکھ کے ہو کر بے سہارا کرے کنا ارے کرے نہ شہید کرے برداشت کرے کنا سنا بسر 6 سال نہ ہو 3 سال نہ ہو سال نہ ہو ذاکر جان ایک بات کرے ذاکر جان نے کہا بنتے ذاکر جان سیاسی توسط ذاکر جان سے ناکہ نہیں کرے ذاکر جان ابانی منصر کو ناکہ نہیں کرے ذاکر جان ابانا اس کی اخصو سیاسی ہونا کتاب صرف دادا دشمن نا کناوراتی ذاکر جان سیاسی ہوشا اور ابانا بھی ہوشا کنا گنان کنا تکلیف جان یہ نہیں اس کو دیان تکلیف پاکستان یہ نہیں اس کو تکلیف یورا خلص ہم تسیطر وہ کنا سنائی رہا بازا سالہ نبی گو کریں کنی برباد کریں کنی بے سواد کریں یہ سب بازا ہمیں ذاکر جانا بروبر ناس کنا خلصہ منا مرم بریتے دوما سینا اولوما انت پائی وانت لوما پائی اولوما نری کان تکنے دیا تکنے لوما گیتے تیسری لوما تکنے کلو الوراتی کی بات آمی کی ذاکر آراتی ہم سری توار سری ذاکر جان سواری کیسری چرے لو ذاکر جان سواری پرابطی کرنا خرابت تو پانی کرنے کی جان سواری دیکھو وہ دن مرو ذاکر جان بلو سری پاڑا ماری رہا آئینے پورا دنیا ہے لاغت کا کبھی ذاکر جان ابھی قسمت علمہ ہاں روڈن ابھی آدھار بنی کار سیدھت کر بتی توار کرے ذاکر کی نام مارچ کرے ذاکر کی تو ویسے طرح سمجھے طرح کہنے کی کار جانا ہے اس سوال مہربانی اماں یہ تھی بلوچ طالب علم رہنما لاپتہ طالب علم رہنما ذاکر مزید کی والدہ. اب میں شاہ بلوچ کے لڑکی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اظہار خیال کریں. السلام علیکم نام نادیہ بانو مشخاران تعلق داری نبراس طاقت بلوچ CTDA 16 مارچ 2022 شفیع 2 بجا آتا کرنے کے ساتھ لاپتہ اشکل پر
إشارة من ورشدة مكان المشن زي مريض الشفاء أني نزين كنت صالم إشارة شيشي ساري ميا gracias غلام فريد نامي سارة آيرا فتايشكو آيرا برازي آبشكو إشارة بودش دماغ زيني مريض يا فريسة منشي بیمار أمر دوار أرتي مم عائلة أمر مرضي ذاك شيء كونه أصيدين أرتي مم मेरे साथ साफा है जब मोबाइल सारा मन धमकियां तक विकास का रोजगार के तरह है आई पता कोनी और टीम 5-10 साल की गुमावी जुल्म आया गया है निवासन से किच अर्ची मा शपे मारे बने हॉस्पिटल मैं गुजारिश करनी कि वो निगरान का गुनाह है तो जुर्म को तो ब्याज की अदालत में पेश करें आया पार्टी ताल्लुक की तनाई सियासत को आया काफिजुल कुरान है अच्छा किसा दर नहीं था अगर जुर्म को तो गुनाह को तो ब्याज की अदालत में पेश करें तो सारा इंसान लापता मा करे मासूम और डिफरेंट मा करे अम्मा अंसी मुझे किसी किसा दर नहीं आता माना पीले में यार गुनाह चीजें को तो उस ब्याज पे अदालत में पेश करने किसी और मा करे थे उन 5 साल इनके बेगिसा को हमें जुल्म बया गए हमें मोबाइल आंसर रिंग देंगे कि सारा सीटीडीन एमआई रिंग करने किसी को ब्याज में जाकर मालूम शिकार बार में कर दे किसी ने निमाज से हमें वो संचार में दरवाजा के तक मालूम शिकार बार में कर हमेशा चला चला के हमें ब्रास मुद्दा जिंदगी ची हालत जान खुजाएं ये चीज़ अल्लाह पर मालूम है क्लाइंट मेरे साथ दूसरी कानान मोबाइल दूरम पैसे दूरम तो मैं एक चीज़ ही नहीं ना मेरे साथ नहीं किस मोबाइल अंदर तने मेहरबानी करें अब मैं वाइस फादर मिसिंग पर्सन के वाइस चेयरमैन मामा करीम से गुजारिश करता हूँ कि वो 10 दिसंबर इंसानी हकूक़ के आलमी के मुनासिबत से इज़हार करें। आने वाले खलीफा बराबरी वकला बराबरी और लगाई की माओ पहली को सलाम। मुख्तसर मैं कहना चाहता हूँ 15 साल से मैं कहता आ रहा हूँ लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। शायद आज कोई से कोई शर्म आए वो सुने हमारी बातें। बैनुल अक़वामी क़वानीन तमाम इंसानी के लिए यकसां हकूक़ फराहम करता है। इंसानी हकूक़ के क़वानीन के जदीद तारीख़ आम तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम से जुड़ी हुई है। इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के अग़राज़ व मक़ासद में शामिल है। 10 दिसंबर 1948 में सबसे पहली दस्तावेज़ात पेश की गई जिसे कहा जाता है ऑफ ह्यूमन राइट्स। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने करारदाद के जरिए नाफिज किया था। तमाम अरकान ममालिक ने कबूल कर लिया सवाए पाकिस्तान। UDHR इंसानी हकूक़ के हवाले से कुछ बुनियादी मयार तय करता है और हर तरह तमाम रियासतों पे लाजिम बनता है इंसानी हकूक़ के हवाले से इन मयारात की पायबंदी करें। आज दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का क़याम 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम इंसानों के बुनियादी हकूक़ के लिए क़वानीन का ऐलान कर दिया था और तमाम रियासत जो UN के मेंबर हैं उन इंसानी हकूक़ के क़वानीन की पासदारी के पायबंद हैं। बलूच मन ऐसर कौम इस कुर्रे हर्ज़ ज़िंदगी गुजारती है। इसकी एक ज़मीन है, ज़बान है, कल्चर है और जीने का हक रखती है। लेकिन पिछले 75 सालों से रियासत में बलूच कौम को उनके तमाम तर बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम कर रखा है और उनसे जीने का हक छीना गया। बलूच कौम अपने ही सरजमीन पे एक खुद मुख्तियार कौम की हैसियत से
जीने का हक मांगती है, जो किसी भी इंसान का बुनियादी हक है और हर इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और उसे आज़ादी से रहने और जीने के हक से कोई महरूम नहीं कर सकता। बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ दहाइयों से जारी है, जिनमें जिबरी गुमशुदगियाँ, मावराए आईन और कानून, शहादत, जेली मुकाबलों में कैदियों को मारना और उनके मसख शुदा लाशों को फेंकना और झूठे दावा करना, खवातीन और बच्चों को ज़ुल्म करना, तशद्दुद करना, उन्हें अब्स बेजा में रखना, उन्हें फौजी कैंपों में ले जाकर बंदी रखना, आम आबादियों पे शेलिंग और बमबारी करना, मालदारों के माल मवेशी और उनके दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान छीनना, मज़हब के नाम पर कत्ल करना वगैरह। बलूचिस्तान में रियासत पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में अपने तमाम नाम नहाद रेड्स कायम करने के आड़ में वहाँ लोकल मलेशिया जिसे डेथ स्क्वाड कहा जाता है, उन्हें मुसल्लह कर दिया गया है। उन डेथ स्क्वाड में रियासत के अमनवा, कबायली शख्सियात और मजहबी इंतहा पसंद भी शामिल हैं, जिन्होंने आम बलोच अवाम को उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ से मारूफ कर दिया। रियासती फोर्सेस बराह रास्त या फिर उन डेथ स्क्वाड्स के ज़रिए लोगों का कत्ल करते हैं या उनको जिबरी तौर उठाकर लापता करते हैं। अपने टार्चर सेल्स में उनको इंसानियत, सोच, जिद और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। कुछ लवाकिन से ज़र्रे तावान भी तलब करते हैं और बेशतर को कत्ल करते हैं। रियासती कानून नाफिज करने वाले अदारे जिबरी लापता अफराद को जेली मुकाबलों में मावराए अदालत करके उन पर झूठे और नाजायज़ इल्ज़ामात लगाते हैं। हालांकि हालिया कुछ सालों से जिन लोगों को शहीद करके उनको इनकाउंटर का नाम दिया गया, वो तमाम लोग फिर इनकाउंटर में कत्ल किए गए, जिनकी गुमशुदगी के सबूत हमारी तंजीम के पास मौजूद है और उनकी गुमशुदगी के हवाले से उनके लवाकिन ने BBMP को रिकॉर्ड भी किया हुआ होता है। बलूचिस्तान में साल 2023 में जनवरी से अब तक 60 अफराद को मावराए अदालत कत्ल किया गया, जबकि 600 के करीब लोगों की जिबरी गुमशुदगियों के केसेस रिपोर्ट हुए, जिनके तमाम रिकॉर्ड हमारे पास महफूज हैं और उन्हें हम जल्द आलमी अदारों, अक़वाम मुत्तहिदा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूरोपीय यूनियन वगैरह को पेश कर देंगे। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन और बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले तंजीमों की एदाद शुमार के मुताबिक मार्च नवंबर के महीने में जिबरी गुमशुदगियों के 62 केसेस रिपोर्ट किए गए, जबकि नवंबर के महीने में 13 अफराद को मावराए अदालत कत्ल किया गया। मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों से मालूमात हासिल करना मुमकिन नहीं है। कुछ लवाकिन डर और खौफ की वजह से सामने आने से डरते हैं। उन्हें डराया और धमकाया जाता है कि अपने आप में बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों से मालूमात हासिल करना मुमकिन नहीं है। कुछ लवाकिन डर और खौफ की वजह से सामने आने से डरते हैं। उन्हें डराया धमकाया जाता है कि अपने लापता लोगों के हवाले से बात न करें, नहीं तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। मैं बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल इससे कहीं गुना बदतर है जो देखा जा सकता है। वो सब मेहरबानी मैं इज़हार ख्याल के लिए जो हमारे नेशनल पार्टी के सूबाई रहनुमा है
मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि वो ज़ाहिर करें। मैं वाइस के इस अजीम जद्दोजहद और दिन के मुनासिबत से उनको टैक्सी पेश करता हूँ। और इसके हमारा एक बाकी प्रोग्राम हमने उसमें जाना है, हमने रिक्वेस्ट की कि हमने अगर पहले निकाल जाए और उसकी बात करके चले जाएंगे। तो आज के दिन की मुनासिबत से जो आज का ये आल पार्टी कॉन्फ्रेंस है तहरीना में इंतहाई अहमियत काबिल है। आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कानून के मुताबिक आज इंसानी हकूक़ के आलमी दिन का दिन मनाया जाता है। आलमी इंसानी हकूक़ से मुराद हर उस बंदे का, उस शख्स का, उस इंसान का बुनियादी हकूक़ है जो जिंदा है और सरजमीन में रहता है, उसकी राइट्स है। बदकिस्मती से इस मुल्क में शुरू से मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में किसी भी इंसान का और ख़ासतन बलूचिस्तान के लोगों का इसमें किसी किस्म के राइट्स नहीं दिए गए, न राइट्स दिए जाते। इस मुल्क में जो कानून बनाए गए हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, इसकी मुकम्मल तौर पर वायलेशन की जाती है। जब इस मुल्क के जो वो ताकतवर होते जब वो खुद इस आइन को पामाल करते हुए माशाला लगाते हैं, जब इस आइन को पामाल करते हुए नजरिए ज़रूरत बनाते हैं, तब तो आम शहरी, आम इंसान, आम बलूच के लिए कुछ हैसियत अहमियत नहीं रखता होगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि हर फर्द का, हर शहरी का इंसानी राइट्स है और इन राइट्स की पामाली सरकारी की मुस्तकिल होती है, न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से बल्कि इस मुल्क के जो अपने आइन और कानून के हवाले से भी है। शुरू दिन से जब से ये सिस्टम हुआ है, सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन के बाद जब ये का क़याम अमल में आया है, उस दिन से बलूचिस्तान में बलूच कौम के साथ इस तरह के रवैये रखे जा रहे हैं। हम देखते आ रहे हैं कि शुरू दिन से कभी पहाड़ों से हमारे बुजुर्गों को उतारा जाता है, कुरान पाक के नाम पे उनको उतारा जाता है और उनको सजाएं दी जाती है, उनको कैद किया जाता है, उनको काचा शहरों में दिया जाता है। हम देखते आ रहे हैं जो हमारे जो सियासी अकाबरीन है, जो सियासी रहनुमा है, जो हमारे सियासी क़यादत है, उनको सियासी आवाज़ के हवाले से, हकूक़ के हवाले से उनको पाबंद किया जाता है, उनको सालों सालों कैदखानों में, जेल में रखा जाता है। जिस तरह मीर मोहम्मद जिंदो का नाम ले ले, सरदार गुलाम खान मेंगल का नाम ले ले, खान शहीद का नाम ले ले, खान नसीर का नाम ले ले, मोहम्मद हुसैन अफगान का नाम ले, तवील फहरिस्त एक सियासी क़यादत की जिनको बलोच की आवाज़ बुलंद करने के लिए या हक की बात करने की वादात में उनको जेलों में कैदबंद की सोबतें उनको डाली गई, जो कि इस मुल्क की आला क़यादत थी या इस सूबे की आला क़यादत थी। इसी तरह इसी तसल्सल को उसी दिन से बलूचिस्तान में 5 या 6 ऑपरेशन किए गए, 5 इंसर्जेंसी जारी है इस हवाले से। और इस वजह से कि ताकत का जोर, ताकत की पॉलिसी रखी गई है कि कौमों को ताकत के जरिए ज़ेब किया जाए और ताकि जो अपनी मुनाफरी, अपनी बलदस्ती को मुमकिन बनाया जाए। लेकिन हम वादे करना चाहते हैं कि इस मुल्क में तमाम कौमें अपनी तारीखी सरजमीन, सकाफत और दुआओं के साथ आबाद है। उनको बदौर ताकत आप देर भी कर सकते हैं। बलोच कौम भी अपने तारीखी सरजमीन और वतन के साथ में आबाद है और उसको आप इस तरह के मनफी हरकतों से, तो ताकत से आप न उनको ज़ेर कर सकते हैं, न उनका वतन से छीन सकते हैं। लापता, आज का टॉपिक है लापता अफराद के हवाले से। हम समझते हैं कि किसी भी शहरी को इस तरह लापता करना, मावरे आइन इक़दाम करना, जिंदगी का शिकार करना इंतहाई मनफी अमल है और भरपूर काबिल मज़म्मत है। अब तो इन्होंने
लापता अफराद को, सियासी कारकुनों को, जो आइन कहता है आज़ादी राय आइन देता है, इंसानी हकूक़ की हिमायत आइन करता है, उस आइन के बावजूद आप सियासी कारकुनों को जो सियासी जदोजहद करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए, उनको आप पाबंद सरासर करते हैं, उनको आप जिसकी तौर पर गुमशुदगी का शिकार बनाते हैं। पहले आप मसकशुदा लाशों के जरिए उनको उनकी लाशें फेंक देते थे वीरानों में, अब आपने एक जाली काउंटर टेररिज्म की जो डिपार्टमेंट आपने बनाया है CCTV के जरिए आप उनको जाली इनकाउंटर करते हैं, उनको शहीद करते हैं। ये इंतहाई संगीन इक़दाम है, ये इंतहाई नाकाबिल कबूल है। आपके आइन के मुताबिक, इस मुल्क के आइन के मुताबिक अगर कोई भी शहरी, कोई भी शख्स, चाहे जो तबके से जिस कौम से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो आपको मतलूब है तो उसका इलाज भी इसी आइन और कानून में मौजूद है। आप अपने आइन और कानून के मुताबिक उनको अदालतों में पेश करें। अगर कोई सज़ा का मुर्तकिब हुआ आप उनको सज़ा दें, अगर किसी के पास नहीं हुआ तो आप उनको रिहा कर दें। लेकिन चूँकि आप जानते हैं आप बदौर कुव्वत इस तरह चीज़ें करते हैं और इसी वजह से आप अदालतों में लोगों को पेश नहीं करते कि आपने तमाम लोगों को बेगुनाह तौर पर उनको उठाया है, उनको अपने सिर्फ अना की तस्कीन के लिए या इस सरजमीन पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की वजह से आप कौमों को ज़ेर करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से आप उनको लापता करते हैं, जो कि तौर पर गुमशुदा करते हैं। इसी वजह से आपको अपनी अदालतों पर भी एतमाद नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आप सबूत नहीं कर पाएंगे इन लोगों पे, और इस वजह से आप उनको जाली इनकाउंटर में मारते हैं, टारगेट करते हैं। नेशनल पार्टी रोज़ अव्वल से इस मौके पर कायम है कि बलूचिस्तान का मसला मुकम्मल तौर पर सियासी है और सियासी मसलों का मुज़ाकरात के जरिए किया जाता है। अगर आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे कौम के ऊपर, बलूच कौम के ऊपर, तो फिर ये सुलगता हुआ मसला हमेशा जारी रहेगा, तो फिर आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। हम समझते हैं जो तसलसल नेशनल पार्टी ने अपने दौर इक़्तिदार में डॉक्टर मालिक बलोच ने जो मुज़ाकरात का सियासी अमल शुरू किया था, इसको जारी किया जाए, इसको दोबारा शुरू किया जाए और इस सरजमीन को अमन और सुकून दिया जाए। और किसी भी सियासी मसले को हल करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की हुई है, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से अहम है कि आप तमाम लापता अफराद को बाज़ियाब करें, उनको रिहा करें या उनको अदालतों में पेश करें, तब आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकेंगे, तब आप चीज़ों को आगे बढ़ सकेंगे। आइन और कानून के मुताबिक आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं, अवाम आपके साथ होगी। अगर आप इस तरह के मनफियत करने करेंगे, जिस तरह हमारी बहन ने कहा कि बालात के हवाले से आपने उनको हिरासत में लिया, फिर उनको अदालत में पेश भी किया और उसके बाद आपने उनको एक जाली मुकाबले में शहीद कर दिया, और एक झूठा एक अजीब मंतक की आपने दलाइल पेश करने की मनफी कोशिश की कि वो इस तरह हुआ उस तरह हुआ। ये बलूचिस्तान के अवाम बल्कि इस मुल्क के अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि जो एक मखसूस माइंड सेट है शहरियों के हवाले से, अवाम के हवाले से, हकूक़ के हवाले से, इसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस तरह के मनफी हरकतों से बिल्कुल सियासी कारकुनों को मरूम नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन जो एक अहम इदारा है इस सियासी जदोजहद में, इस लापता अफराद के ज़िंदगी को बचाने के हवाले से इनका किरदार, उनकी जदोजहद काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। हम उनको सलाम पेश करते हैं कि जो दिन मुसलसल के ज़रिए उस तसलसल को आगे बढ़ाए, वाकई तौर पर इंतहाई काबिल दीन है। नेशनल पार्टी ने हमेशा ये मौक़िफ़ रखा है, नेशनल पार्टी असूली मौक़िफ़ रखती है कि जहाँ भी हो, वसाइल के हवाले से भी हो, साइल के हवाले से भी, वसाइल और साइल सबसे पहले उस कौम का, उस इलाके के अवाम का हक़ है, उसके बाद किसी और का हक़ है। इसी तरह हम समझते हैं कि सियासी कारकुनों को अगर आप इस तरह मनफी हरकतों से आगे ले जाएंगे, उनको मरूम करने की कोशिश करेंगे, तारीख ने साबित किया है कि आप उसमें हमेशा नाकाम रहे हैं।
तो इस आज के दिन की मुनासिबत से हम इस बात का यकीन दिलाते हैं कि नेशनल पार्टी लापता अफराद के साथ वाइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के साथ और उस मजलूम महकूम कौम के साथ खड़ी है जो अपने वतन, अपने कौम, अपने सरजमीन की जदोजहद में शामिल है या अपने प्यारों की बाजियाबी की जदोजहद करते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। पाँच मिनट के उनमें वो हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे। आप सबको का हमारे दरमियान मोहम्मद हसन बैठे हुए हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मजलूम महकूम अक़वाम के जो हकूक़ है, आयत में दिए गए जो हकूक़ है, या जो बलूचिस्तान में या जो मशहूर से मशहूरों के जुर्म और रियासती जो जुर्म के शिकार है, या बलोच कौम जो रियासती जुर्म के शिकार है, या जो छुट्टियों का मसला है, हवाई इक़दाम है, इक़दाम कर रहे और लापता अफराद की बाजियाबी का मसला है, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इस हवाले से वो जो मुल्की कानून में और बैनुल-अक़वामी कानून में वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे यहाँ पर पश्तून नुमाइंदगान हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। आगा साहब को मैं मशहूर हूँ, हमारे मीर साहब बेटे हैं साहब, और साथ में मेरा ये बचपन का दोस्त है साथ, दोस्त अभी मेरे नज़रियाती साथियों में शामिल होते हैं, शम्स बलोच साहब। बात ऐसा है कि सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आज यानी जो इंसानियत का मुजाहरा किया जा रहा है साल के अंदर, जिसमें हमारे पश्तून भाई और हमारे हज़ारा भाई भी शरीक हैं, मैं इनका भी मशहूर हूँ। मेरे ख्याल से क्रिश्चियन बिरादरी भी यहाँ पे शामिल है, और आज के दिन एक जिंदा कौम की हैसियत से इस साल को कचाकच भर देना मकसूद था, मगर चूँकि हमारा इतना इंसानी तजादात है कि हम हर लिसानियत के ऊपर, मजहबियत के ऊपर, एक फरसुदा सोच के ऊपर इकट्ठे होते हैं, मगर जहाँ पर खालिसतन एक इंसानी अलमिये की बात होती है वहाँ पर हम फिर तजादात का शिकार होते हैं, हम सूबाई तासुबात का शिकार होते हैं, मसलकी इख्तिलाफात का शिकार होते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपके इल्म में है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ये इसका क़याम इसलिए वजूद में आया कि महकूम और मजलूम कौमें, महकूम और मजलूम इंसान, जिसे एक रियासत एक बदमस्त और एक पागलाती की तरह रोंदने की कोशिश करती है, तो कुछ इंसान दोस्त जो दानिश्वर है या इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन्होंने कहा कि यार चूंकि ये रियासतें ये बदमस्त हैं, ये वो आती हैं कि इन्हें किसी सूरत की इनके लिए कोई रस्सी आज तक दुनिया में इंसानों ने ईजाद नहीं किया है, लिहाजा आइन और कानून की बुनियाद के ऊपर इन पर जाके हमने ये रस्सियों से इनको बांधना मकसद है। तो इसी बुनियाद पर रियासत पाकिस्तान ने भी यही काम किया कि रियासत पाकिस्तान जो जेनेवा कन्वेंशन है, उसमें रियासत पाकिस्तान ने एक ट्रीटी के ऊपर सिग्नेचर्स किए, और वो ट्रीटी यही था कि एक मोज़िब एक मुल्क के तौर पर खुद को इस रियासत में साबित करना है और वहाँ पर इसने सिग्नेचर्स किए कि जितने इंसानी हुकूक है, जितने इंसानी राइट्स है, या जितनी इंसानी एक मस्बत सोच है, इसका ये रियासत साथ देगी। और इसी एक यानी एक मुकरू फेल के बुनियाद के ऊपर आज रियासत जिस बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया इसको देख रही है। और जो रियासत की चालें हैं, ये जो रियासत, जैसे कि आप देखते हो कि हमारे चाहे पश्तून सरजमीन के वसाइल हैं या बलोच सरजमीन के वसाइल है, या सराइकी है या सिंधी है या उर्दू स्पीकिंग है। अभी तो खैर से जब से यानी PTI के ऊपर जो यानी आसमान टूट पड़ा, तो हमारे पंजाबी भाई भी बोल रहे हैं। यानी हमारे ये पंजाबी भाई वो थे कि हम इनके सामने हाथ जोड़ते थे, इनके सामने हम झोलियाँ पकड़ते थे,
کہ آپ انسانیت کی بنیاد پر آ کے ہمارا ساتھ دو کہ اس وقت جو ہمارا GHQ ہے ایک پاگل ہاتھی کی طرح یہ شتر بے مہار کی طرح سب کو روند رہا ہے، تو وہ ساڈا فوج کہہ کے ہمارے اوپر یہ لوگ تمسخر اڑاتے ہیں کہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ غدار وطن ہو، اس سرزمین کے غدار ہو، اس سرزمین کے ساتھ شروع دن سے آپ کا تعلق واسطہ نہیں رہا ہے، چاہے افغانستان کی شکل میں ہے یا ایران کی شکل میں، اس طرح کر کے ہماری زبان بندی کی جاتی تھی۔ مگر آج آپ دیکھتے ہو سب سے زیادہ مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ لاہور چیخ رہا ہے، اور اسی دن کے انتظار میں ہم تھے۔ اسی دن کی بنیاد پر اگر چاہے آیت اللہ مینگل ہے یا خان شہید ہے یا باچا خان ہے یا ولی خان صاحب ہیں یا کانفرنس لیڈر ہے GM سید، یہ سارے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ذرا پنجاب کے اندر آگ لگنے دو، اور وہ آج آگ لگ چکی ہے۔ اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ آج سب سے پہلے پنجابی بھائیوں کی اس انداز میں چیخیں نکل رہی ہیں، نہ صرف اور بلکہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ واقعتاً یعنی بلوچوں کا کیا درد ہے، پشتونوں کا کیا درد ہے، سرائکی کا کیا درد ہے، آج ہمیں وہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال میں واپس آتا ہوں اس اصل ایشو کی طرف۔ بالاچ کا واقعہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے، اتنا سیدھا بھی نہیں ہے، نہ اپنا اس کو ہم اتنی آسانی سے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ بالاچ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ بالاچ، سیف اللہ اور شکور، یہ انہوں نے کیا کیا، یہی بس بدمست آدمی نے اس سے انہوں نے سب سے پہلے اپنے عقوبت خانوں میں انہوں نے ٹارچر سیل میں جا کے انہوں نے باندھے رکھا، اس کے بعد انہوں نے اسے کمپیوٹر کورٹ آف لا میں پیش کیا۔ وہاں پیش کیا، انہوں نے کہا کہ ایکسپلوزیو سبسٹینس یعنی جو دھماکہ خیز مواد ہے 5 کلو گرام ان سے ریکور ہوا ہے، اور اسی 5 کلو گرام کی بنیاد پر دہشت گردی کے ان کے اوپر انہوں نے پرچے کاٹے۔ دہشت گردی کا جب ان کے اوپر پرچہ کٹا تو اس کے بعد باقاعدہ ڈویژن اسٹیٹ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ یہاں تک تو وہ ریاستی ڈرامہ بازیاں سب کچھ سمجھ آ رہی ہیں، یعنی ظاہر ہے جب جوڈیشل اسٹیٹ ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی آپ اپنے آئین کو بھی مان رہے ہو، اپنے قانون کو بھی مان رہے ہو، اس کا تمسخر آپ کبھی بھی نہیں اڑاؤ گے۔ تو وہاں پر مجسٹریٹ صاحب نے کیا کیا، اپنی آنکھیں بند کی اور ہمیں یہ دی اپنا جو عدالتوں کا جو نظام ہے اس کے اوپر میں بحیثیت ایک وکیل کے میں آپ سب کے سامنے شرمندگی بھی محسوس کرتا ہوں اور آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ جس طرح انصاف کے نام پر عدالتوں میں کھلواڑ کھیلا جاتا ہے، اس سے میرا اپنا سر شرم سے جھکا ہوا ہے کہ میں کسی کو کنوینس نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے مسائل کے لیے یا پھر اپنے انسانی حقوق کے لیے عدالتوں پر رخ کریں۔ بالکل ہم نے یعنی وکلانیات کھڑے کیے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں جو ہے نا یہاں پہ بھی انصاف کے نام سے کھلواڑ کھیلا جاتا ہے۔ فیڈرل مجسٹریٹ نے آنکھیں بند کر کے 10 دن کا ان کو ریمانڈ دے دیا، حالانکہ قانون میں ایسا قطعاً کئی چیزیں نہیں ہے۔ CRPC ہے، 24 سال سے میں وکالت کو رٹا لگا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 2 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے، 3 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے، لیکن جہاں پر انسداد دہشت گردی کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پر CTD کی بدماشیاں ہوتی ہیں، پھر وہاں پر یہ عدالت کے جج بھی کام شروع کرتے ہیں، وہ کیونکہ ان کو اپنا نوکری عزیز ہوتا ہے، ان کو اپنا پروٹوکول عزیز ہوتا ہے۔ 12 لاکھ روپے سیلری انہوں نے جا کے 10 دن کا دے دیا، تو بھائی 10 دن کا آپ کو مل گیا۔ جوڈیشل ریمانڈ میں ایک بات آ گئی، دوسرے دن جا کے انہوں نے یعنی بالاچ کو انہوں نے کیا کیا، اس کی لاش کو انہوں نے چلنی کر کے رکھ دیا۔ اب اسی ایک عمل سے کیا آپ اس بات کیا سمجھتے ہو، یعنی حیثیت ایک ریاست یہ ایک مجرمانہ ایک عمل ہے، اور مجرمانہ عمل اس انداز میں ہے کہ اس کے قوانین موجود ہیں۔ یعنی آپ کا پاکستان پینل کوڈ کا جو 200 PPC ہے، 201 PPC ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ آپ اپنا ایویڈنس چھپاتے ہو، آپ ایویڈنس کو مسخ کرتے ہو۔ یہاں پر آپ نے ایویڈنس چھپایا، یعنی ایک شخص کا آپ نے اس کو بے گناہ قتل کیا تو آپ کے اوپر تو مقدمہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر کیا کیا کہ بہرحال پھر انہی عدالتوں نے کیا کیا کہ سچا جھوٹا FIR کاٹا، اور حکومت بلوچستان اس وقت جو ہے نا اس وقت سرفراز بگٹی اس بلوچ قوم کا سب سے بڑا میں اس کو مجرم سمجھتا ہوں۔ میں اس بات پہ یعنی مجھے شرمندگی ہے کہ یہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں بلوچ ہوں۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگا لو، یعنی بے شرمی بے حیائی کا اندازہ لگا لو۔ FIR درج ہو گیا، بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ نے اسی FIR کو انہی بدماشوں کو یعنی ریاستی ایما کے اوپر ان قاتلوں کو آپ نے بچانے کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ میں آپ نے آ کے اپیل بھی دائر کر دیا، یعنی اس FIR کے خلاف جو انہوں نے یعنی بالاچ کے قاتلوں کے اوپر کاٹے ہیں۔ تو یہ حکومت بلوچستان کا یہ سب سے شرمناک میں اس کو فیل سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال ساتھیوں، اب اس وقت وہ FIR یہاں پر پینڈنگ ہے، اس وقت وہ FIR یہاں پہ چل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا آرٹیکل 4 ہے
ہمارا آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ ہر شہری وہ قانون کے مطابق برابری کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ایکویلٹی آف سٹیزن ہے. کہ آرٹیکل 4 میں یہ ہے کہ کوئی ترم خان نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی محکوم نہیں ہے، کوئی مظلوم نہیں ہے. ایک ریاست کے سامنے سب ایک برابری کے حقوق رکھتے ہیں. آپ اسی آرٹیکل 4 کو بھی رونتے ہو. اس کے بعد آپ کا آرٹیکل 9 آتا ہے. آرٹیکل 9 میں یہ ہے کہ آپ یعنی کسی کا لائف، کسی کی آزادی، کسی کی لبرٹی، اس تمام کا ذمہ دار ایک مہذب معاشرہ ہوتا ہے جس کا تمسخر پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اسی طرح آپ کا آرٹیکل 15 ہے. آرٹیکل 15 میں رائٹ فار موومنٹ ہے، آرٹیکل 15 میں رائٹ فار اسپیچ ہے. آپ نہ کسی کو بولنے دے رہے ہو، نہ کسی کو آپ اپنا یعنی کہیں پہ کڑے ہونے کے لیے چھوڑ رہے ہو، جس کا سب سے بدترین مثال منظور پشتین ہے. منظور پشتین نے کیا قصور کیا ہے؟ آخر وہ کون سی باتیں اس نے کی کہ آپ نے اس کو جو ہے نا پابند سلاسل کیا؟ تو اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ریاست اب تہذیب سے نکل چکی ہے. اب مجھے صرف اس بات کا دھوکہ ہے کہ دکھ ہے اس بات کا کہ جو یونائٹڈ نیشن کا آرٹیکل 10 ہے، یعنی یونائٹڈ نیشن کم از کم یونائٹڈ نیشن کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اس ریاست کو آئینہ دکھائے کہ آپ یعنی ایک ریاست کے نام پر آپ ان بربریت کا مظاہرہ کس بنیاد پہ کر رہے ہو. یا تو پھر ان کو چاہیے کہ جینوا کنونشن میں جو اس وقت ہمارا یہ ریاست ہے، یہ وہاں پر باقاعدہ ممبر ہے، ان کی ممبر رکنیت کو یہ لوگ منسوخ کریں، ان کے اس کو جا کے ان کو کسی کونے میں بٹائیں. یار آپ جو ہے نا بنانا ریاست، یعنی چونکہ آپ اس لیے بنانا ریاست کو، نہ آپ اپنے آئین کو مانتے ہو، نہ آپ اپنے قوانین کو مانتے ہو، نہ آپ اپنے ججوں کو مانتے ہو. جب کچھ نہیں مانتے ہو تو پھر مون کی ٹرائل یہ لوگوں کو اس طرح کی حرکتوں سے آپ لوگوں کو جو ہے نا گمراہ نہ کریں. تو بہرحال ساتھیوں، وقت کم ہے، باتیں بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں صرف اس بات کا یعنی رونا ہے مجھ کو کہ آپ اگر عدالتوں میں جاتے ہو، ماما قدیر کا یہ یعنی جو انہوں نے ECL میں ماما قدیر کا نام ڈالا ہے، یہ 4تھی مرتبہ ہے میں 2021 سے تواتر کے ساتھ کسی بلوچستان ہائی کورٹ میں پیش ہوتا ہوں اور وہاں پر اپنا ماما قدیر کا نام میں ECL سے نکالتا ہوں، پھر یہ PCL میں ڈالتے ہیں، پھر PCL سے نکالتا ہوں، پھر ECL میں ڈالتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی عدالتوں کا بھی تمسخر اڑاتے ہیں. یعنی مجھے اس بات کا حیرانگی ہے کہ ہم آخر کس زبان میں آپ کے ساتھ بات کریں. آپ کے ساتھ ہم قانون کی زبان میں بات کرتے ہیں، آپ ہماری آنکھیں نکالتے ہو. آپ کے ساتھ ہم آئین کی زبان میں بات کرتے ہو، آپ ہماری زبان کاٹتے ہو. اب یہاں پر ہماری ایک بہن کہہ رہی تھی کہ باقاعدہ میں تھریٹ ہے کہ آپ اپنے اس طرح کے سیمیناروں میں شرکت مت کرو، ورنہ جو حکومت خانے میں آپ کے جو بچے کچے لوگ ہیں ہم ان کو بھی جا کے قتل کریں گے. تو ریاستی سطح پر جو اس طرح کے اس کی گھناؤنا کردار ہے ریاست کا، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور تمام انسانیت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ ایک انسان دوستی کا مظاہرہ کر رہے ہو، یقین جانو کہ اس سے ہمارے حوصلے بلند ہو رہے ہیں. یعنی بہت سارے لوگوں نے انہوں نے اپنا وہ کیا کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے سیاست کی مراد کی بنیاد پر، کچھ لوگوں نے اپنے دوسرے مراد کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ ریاست کی طرف سے ان سب کو کسی حد کا کچھ نہ کچھ دودھ مل رہا ہے، تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. لیکن جب میں ان کے یعنی خلوص کو دیکھتا ہوں، ان کی نیک نیتی کو دیکھتا ہوں، اور چاہے 4 آدمی ہیں، چاہے 10 آدمی ہیں، چاہے 15 آدمی ہیں، لیکن ایک جرأت میں خود بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہوں. ہم تمام دوستوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہے اور شدید خطرات لاحق ہے. ہم سمجھتے ہیں، ہم اپنے دشمن کے یعنی وہ مکروہ فعل کو بھی سمجھتے ہیں، ہم اپنے دشمن کی مکروہ حرکتوں کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر رونا دھونا کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا ایک تاریخ رہا ہے. ہمارا تاریخ یہی رہا ہے کہ 1410 سے لے کے 1948 تک بلوچوں نے اسی سرزمین کے اوپر بلوچوں نے حکمرانی کی ہے. بلوچوں نے سائرس اعظم کو بھی یہاں سے بھگا دیا. بلوچوں نے الیگزینڈر دی گریٹ جسے ہم سکندر اعظم کہتے ہیں اس کو بھی یہاں سے انہوں نے بھگا دیا. بلوچوں نے اپنے احمد شاہ ابدالی دوست کے ساتھ بلوچوں نے پانی پت کے میدان میں بھی وہاں پر بھی انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا، وہاں پر بھی امیت کا مظاہرہ کیا، اور وہاں پر بھی احمد شاہ ابدالی کو اپنے یعنی انہی سپوتوں نے سرخرو کیا. اور ان کا سیولائزیشن کا، ان کے تہذیب کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ احمد شاہ ابدالی نے ان کو کہا کہ اپنا بھی پنجاب کی باری ہے، لاہور کی باری ہے، آپ اس کو بھی تقسیم کرتے ہیں، بلوچ اور پشتون وطن میں اس کو شامل کریں گے. لیکن نوری نصیر خان نے کہا کہ میرا سیولائزیشن، میرا تہذیب، میری انسانیت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی. پنجاب پنجاب کا ہے، لاہور لاہور کا ہے. تو یہ باتیں آج سے ہم 100 سال پہلے بھی سوچتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا تہذیب کتنا رچ ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے تہذیب کے اندر کتنی انسانیت ہے، ہمارے تہذیب کے اندر کتنی رواداری ہے. ہم آج بھی اپنے اس ریاست کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا دشمن نہیں ہیں،
کہ آپ کی اپنی بدنصیبی ہے کہ آپ اسے ایک اپنا فلاحی ریاست نہیں بناتے ہو. آج آپ اس کو فلاحی ریاست بناؤ. میرے خیال سے جتنی بھی یہاں پر جب ایک پارلیمانی سیاست ایک شخص کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ ریاست کو مان رہا ہے. لیکن آپ جان بوجھ کے آپ ان تمام لوگوں کو یعنی محکوم لوگوں کو اپنا دشمن بنا رہے ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کب تک ان کو اپنا دشمن بناؤ گے؟ سکندر اعظم یہاں سے بھاگ سکتا ہے, سائنس دی گریڈ یہاں سے بھاگ سکتے ہیں, مہدی یہاں سے بھاگ سکتے ہیں, آپ کے خامیشی یہاں سے بھاگ سکتے ہیں. تو اگر جس طرح آپ کی یہ غنڈہ گردی ہے تو یقیناً ایک نہ ایک دن آپ کو بھی یہاں سے بھاگنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بڑی مہربانی. میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں صرف 2 منٹ کے لیے